this video, we will study about the chromosome and the cell division. What is chromosome? What are the type of cell division? What is the role and what are the functions of chromosomes and cell division and how they are correlated? Basically, whenever we talk about the variation at the genetic level, so we generally discuss that during the meiosis stage, the recombination crossing over takes place due to which the chromosome or the DNA material get exchanged. So in this video, we will study about those stages in which these specific features happen. So in this video, we will basically study about the chromosome and the cell cycle. Cell cycle, it consists of the mitosis and meiosis. कहाँ पे mitosis होता है, कहाँ पे meiosis होता है, कैसे recombinants बनते हैं, क्या segregation होता है, we will discuss all this in this video. So this is the basic diagram of the chromosome and the DNA and how they are wrapped inside the nucleus. So basically this is a cell. So whatever be the cell, like plant cell or animal cell, both consist of the nucleus, and inside the nucleus the condensed form of the DNA is the chromosome. So DNA condensed form is the chromosome. It will unbind this chromosome, so we'll get the long stretch or the long strand of the DNA wrapped around the histone protein. So these are the histone proteins, and around these histone proteins DNA is wrapped, and if you see, this is the condensed form of DNA. So chromosome is nothing but the condensed form of DNA, and if you will unbind it completely, you will get this type of structure of DNA. So basically DNA is a double helix model, double stranded. Why we are saying double stranded? Because it is this. There are two strands, and what are the components of chromosome we will study in this particular video. So first of all, we will start with the chromosome. Chromosome was discovered by the E. Strasburger in the 1875. They first discovered the thread-like structure which appeared during the cell division. Okay, so this you have to keep in mind that discovery of chromosome was done by Strasburger, while the term chromosome was given by the Waldier in 1888. So 1875, Strasburger discovered the chromosome, but name was discovered, chromosome term was discovered by Waldier in 1888. Term chromatin was given by the N. Fleming in the 1879. Basically, what is chromosome? It is a hereditary material, or we can say it is a nucleic acid or the nuclear material, and responsible for the transmission of character from one generation to another generation. So basically, हम सभी को पता है, whenever there is a gamete formation, केवल गैमीट फॉर्मेशन में केवल फ्यूजन होता है और यही चीज दोनों पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के लिए जाती है. तो जो दोनों गैमीट होती हैं, दे कंसिस्ट नथिंग ओनली द क्रोमोसोम्स या फिर आप उसको डीएनए कह सकते हैं, और डीएनए कंसिस्ट ऑफ ऑल द जीनोटाइप, जीन्स, एलील एक्सेट्रा. सो केवल यही चीज जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाता फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोजेनी या फिर न्यू जनरेशन. सो बेसिकली व्हाट इज द क्रोमोसोम? इट इज द हेरिडिटरी मटेरियल. डीएनए क्या कंटेन करता है? डीएनए कोड लेके चलता है, जो कोड किसी भी कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं. तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो एक पूरा का पूरा कोडिंग मैकेनिज्म है डीएनए में, जो कि पूरी लाइफ क्रिएट करता है. देन क्रोमोसोम के नंबर की अगर हम बात करें तो जनरली ये कई बार हम लोग देखते हैं कहीं पर 2n, कहीं पर n, कहीं पर x लिखा होता है. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन द सोमैटिक सेल इज 2n. सोमैटिक सेल क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल बॉडी सेल है. अभी हमारा मान लीजिए कोई भी ऑर्गन है, तो वहां पे जो भी सेल है, कोई भी सेल है, मान लीजिए ये हमारी स्किन है, स्किन में भी जो सेल है उसका सोमैटिक नंबर क्या होगा? 2n. 2n का मतलब है कि इट कंसिस्ट ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम वन पेरेंट, अनदर फ्रॉम द अनदर पेरेंट. सो दोनों का उसमें बराबर पार्टिसिपेशन है. बेसिकली इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. तो मतलब दोनों कॉपी है उसमें क्रोमोसोम की, तो वो 2n कंडीशन होता है. एक्सेप्ट फॉर द सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम में केवल एक ही कॉपी होती है क्योंकि वो गैमीट फॉर्मेशन करता है. टू कॉपीज ऑफ द सोमैटिक क्रोमोसोम आइडेंटिकल इन द मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट एंड जीन ऑर्डर, नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम. तो ये क्योंकि आइडेंटिकल कॉपी है, एक पेरेंट से आई हुई है, दूसरी कॉपी दूसरे पेरेंट से आई है और आइडेंटिकल इन नेचर है, इसीलिए इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि एक जो ये सेंट्रोमेयर के अराउंड जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से, और ये मिला के जो एक क्रोमोसोम बनाते हैं आफ्टर द रेप्लिकेशन, हम जिसमें इसमें इन दोनों को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो एक साथ लगी होती है सेंट्रोमेयर के बाद. तो ये चीज रेप्लिकेशन के बाद इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम हमने जीन में भी पढ़ा है. व्हेनेवर देयर इज अ एलील फॉर अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर की जो जीन की एलील होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम में. और पेयरिंग भी किसके बीच में होगी? फिर होमोलोगस क्रोमोसोम के. मतलब एक पेरेंट से, मान लीजिए हाइट का कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर है कैपिटल टी, तो वो
जिस क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम कैरी करेगा हाइट का जीन मेल में, उसका ही जो अल्टरनेट पेयर होगा फ्रॉम फीमेल जो हाइट का कैरेक्टर कैरी कर रहा है, उन दोनों को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर क्या चीज है, ये बीच की चीज है जो क्रोमोसोम को डिवाइड करती है। तो टीलोसेंट्रिक अगर एक्सट्रीम एंड पे या फिर टर्मिनल पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो उसको हम टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे है तो हेट्रोसेंट्रिक बोलते हैं। सब मेटासेंट्रिक अगर और थोड़ा सा नीचे और अगर बिल्कुल सेंटर पे है तो उसको हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं। ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। देन कम्स द सेल साइकिल। सो दैट इज अबाउट द ब्रीफ introduction of the chromosome, what is the chromosome and what are the various types. Now the cell cycle. Cell cycle is the cycle of event at the nucleus from beginning of the cell division from one cell to another. तो सेल साइकिल हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेल साइकिल अगर कभी भी हम बोलते हैं तो ये एक साइकिल है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ पे ये एक सेल था। कोई भी साइकिल है, साइकिल हम कब कहते हैं, जब वो जहाँ से स्टार्ट होती है फिर वहीं पे आ जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए एक सेल था, अब वो कोई सी भी फेज हो सकती है, फेज हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पूरी फेज से यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पहुंचने तक ये क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। तो बेसिकली ये सेल साइकिल होती है कि जिसमें सेल डिवाइड होता है और फिर फाइनली वहां पे पहुंच जाएगा। यहाँ से फिर फर्दर ये डिवाइड हो सकता है। ऐसे सेल डिवाइड होता जाता है। और मैंने आपको बताया था सेल में भी सेल डिवाइड होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरी बॉडी बनती है। तो इस टाइप से ये सेल साइकिल होती है। बेसिकली इसमें 2 फेज होते हैं। अब यहाँ पे हम इसको फेज में डिवाइड कर सकते हैं। ये इसके 2 फेज है। एक को हम कहते हैं इंटरफेज और दूसरे को हम कहते हैं पूरा का पूरा सेल डिवीजन फेज, जिसमें कि 4 साइकिल आती हैं, 4 स्टेजेस आती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये सारी फेज आती हैं। उसके बाद फाइनल डिवीजन होता है, जो सेल पहुंचता है जिसमें बाकी सारी चीजें डबल होती हैं, दैट इज द इंटरफेज। इंटरफेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द सेल डिवीजन। तो ये दोनों कंसिस्ट होती है। ये इसको हम एम फेज कह सकते हैं। एम फेज मतलब माइटोसिस, मियोसिस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेल, कि अगर गैमेटिक सेल है तो वहां पे मियोसिस होगी, सोमेटिक सेल है तो वहां पे माइटोसिस होगी। और बाकी इंटरफेज, दोनों ही इंटरफेज पे जाएंगे, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। बाकी ये एम फेज होगा। एम फेज अगेन कंसिस्ट ऑफ द 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। विल स्टडी फर्दर। सो इंटरफेज की अगर हम बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट इंटरफेज कौन सी स्टेज है, ये वाली स्टेज है इंटरफेज। इट इज जनरली नोन एज द डीएनए सिंथेसिस फेज। डीएनए सिंथेसिस फेज क्यों इसको हम कह रहे हैं, क्योंकि एक सेल स्टार्ट होके पूरी साइकिल से कैसे आया था, 2 सेल बन गए थे। अब ये यहाँ पे कहाँ पे है, इंटरफेज पे। तो इंटरफेज में क्या होगा, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगी। अभी वो डिवाइड होके आ गया, तो अभी उसको सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं सेल के अंदर की, वो सारी चीजें सिंथेसाइज करनी है। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा आफ्टर सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन। तो जैसे ही सेल डिवीजन हो उसके बाद डीएनए सिंथेसिस के लिए ये इंटरफेज होता है। इंटरफेज को भी 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है या 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। G1, S एंड G2 फेज। G1 को बेसिकली हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। जैसे ही सेल डिवाइड होके आया उसके बाद वो इस स्टेज में पहुंचता है G1 में। यहाँ तो ये ना फर्दर डिवाइड होगा ना ही फर्दर डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगा, हाउएवर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। तो बेसिकली क्या है, जैसे ही डिवाइड होके आया तो वो किस स्टेज में आ जाएगा, G1 स्टेज में आ जाएगा। वो रेस्टिंग स्टेज कहलाती है, क्योंकि ना तो वो डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ना ही फर्दर कोई उसमें डिवीजन होना है या फिर खुद से डिवाइड होना है। तो वो दोनों ही चीजें नहीं होती, बस वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। देन उसके बाद दूसरी स्टेज आती है एस स्टेज, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस। अब यहाँ पे G1 से आने के बाद एस में क्या होगा, जो उसका डीएनए है, जो एक सेल से 2 सेल बने हैं, तो उसमें डेफिनेटली इसका हाफ यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ जो डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे होगी। देन G2 है जो अगेन इट इज रेस्टिंग स्टेज आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन आल्सो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। तो कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस हम वहां पे पढ़ेंगे। तो ये इसके ये स्टेज होती है जहां पे ये रेस्टिंग स्टेज होती है। अगेन दो रेस्टिंग स्टेज है, G1 और G2। G2 कौन सी रेस्टिंग स्टेज है, डीएनए सिंथेसिस के बाद की, और यहाँ पे सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को फर्दर डिवीजन के लिए। ओके, सो दिस इज इंटरफेज एंड दिस इज कॉमन इन द मियोसिस एंड माइटोसिस। चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में ही इंटरफेस कॉमन होता है। यहाँ पे हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे पहले। The term mitosis was given by the Fleming in 1882. Mitosis occur in the somatic organs. Somatic organs मतलब जो भी हमारे body organs हैं उसमें mitosis होती है, whether it is in the animal or the plants, दोनों में same होती है, like the root tip, stem tip and the leaf based body cells. That's why it is known as somatic cell division. इसीलिए इसको हम somatic cell division कहते हैं mitosis को, क्योंकि
ये पूरे बॉडी सेल्स में होता है. एज द क्रोमोसोम नंबर इज सेम इन द डॉटर सेल एज ऑफ मदर सेल, सो इट इज आल्सो नोन एज अ होमोटिपिक एज एन इक्विटेशनल डिवीजन. क्योंकि यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है. जो सेल डिवाइड होना, मान लीजिए 2n कंडीशन में था बॉडी का सेल, तो जो डिवाइड हुआ है वो किस कंडीशन में, वो भी अगेन 2n कंडीशन में है. तो ये जो 2n कंडीशन है कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, होमोटिपिक और इक्विटेशनल डिवीजन कहते हैं. जैसा सेल पहला था पेरेंट सेल, वैसे ही डॉटर सेल बन गई. तो बेसिकली दिस इज द माइटोटिक साइकिल. तो इंटरफेज है, इंटरफेज इज द पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव डिवीजन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ये अगर साइकिल है तो ये इंटरफेज हो गया और ये पूरी एन साइकिल है. तो ये एक सेल यहाँ से, फिर फर्दर 2 सेल हो गए, फिर फर्दर ये ऐसे ही साइकिल चलती रहती है. ओके, सो दिस इज द इंटरफेज. देन फर्स्ट इज द प्रोफेज. पहली स्टेज कौन सी होती है किसी भी डिवीजन की, दैट इज द प्रोफेज. प्रोफेज में क्या होता है, आपको हमेशा याद रखने हैं 3 वर्ड, कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग. कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग होता क्या है कि जो हमारा मटेरियल है, क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं, डीएनए के स्ट्रैंड से. तो डीएनए के स्ट्रैंड कैसे रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर. तो प्रोफेज में क्या है, अब क्योंकि उनको डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने के लिए उनको कंडेंस फॉर्म में होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डिस्पर्स रहेंगे तो वो किस फॉर्म में डिवाइड होंगे वो नहीं पता चल पाएगा. तो ये कंप्लीट क्रोमोसोम का फॉर्म लेते हैं यहाँ पे. तो कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग होती है प्रोफेज स्टेज में. जो हमारा न्यूक्लियर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है. देन इसके बाद मेटाफेज की स्टेज आती है. मेटाफेज स्टेज में इट इज द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम. जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स है वो मेटा इक्वेटोरियल प्लेट पे असाइन होते हैं. तो अलाइन होते हैं बेसिकली, ये जितने भी क्रोमोसोम होंगे, ये जो हमारी इक्वेटोरियल प्लेट होती है यहाँ पे अलाइन होते हैं. और जो सबसे हम कहते हैं कि फाइनली या फुली कंडेंस्ड या थिकन फॉर्म होती है, वो कौन सी स्टेज में होती है, मेटाफेज स्टेज में होती है. और साथ ही साथ ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहाँ पे होती है. और स्पिंडल क्या होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये किससे अटैच होते हैं, इसके सेंट्रोमियर से. हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से ये अटैच होते हैं. सो देन इन द एनाफेज कंडीशन, तो पहली थी कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग प्रोफेज में. देन अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द सेंट्रल प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेन, हम इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या प्लेन. तो दैट इज द मेटाफेज. देन एनाफेज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बाय द स्पिंडल फाइबर. तो ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड डिवीजन of chromosome from the centromere and their movement towards the opposite pole. Okay, तो ये आपको ध्यान रखना है. एक तो क्या होगा, contraction of spindle fiber, contraction of spindle fiber. दूसरा division from centromere. तीसरा movement toward opposite poles. तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में से डिवाइड हो गए और क्या हुआ, उनका दोनों का सेंट्रोमियर से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो डिवाइड होकर अपोजिट पोल्स की तरफ चली गई. तो फाइनली ये फिर उसके बाद जो टीलोफेज आता है, टीलोफेज में क्या होता है कि ये जो अपोजिट पोल्स में पहुंचे थे इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है एंड ये एक फुल अलग अलग सेल का शेप ले लेते हैं. एंड देन फर्दर अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम था वो डिवाइड हो गया, तो ये क्या होता है, फिर जब इंटरफेज में जाएगा G1S एंड G2 फेज, तो वहां पे अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बना के फुली एक स्ट्रक्चर ले लेगा. सो दिस इज टीलोफेज. ओके, तो दिस इज द साइकिल ऑफ माइटोसिस. ये बेसिक ये समरी थी एक टाइप से इसकी माइटोसिस की. तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. कुछ फ्यू वर्ड आपको हमेशा याद रहने चाहिए, जैसे फॉर प्रोफेज कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग. मेटाफेज अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द इक्वेटोरियल प्लेट. एनाफेज पहला तो डिवीजन, contraction of the spindle fiber, then the division of chromosome from the centromere and their movement towards the opposite pole, and the final telophase में nuclear membrane appears. Okay, so this is about the mitosis. What is the now significance of the mitosis? So सबसे पहले क्या होता है, significance क्या है mitosis की, क्यों होता है? Development of zygote into adult organism after the fusion of male and female gamete. तो अब ये देखोगे जो पहली लाइन है यहाँ पे 2 चीजें यूज की गई, तो जाइगोट है और दूसरा क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो जो मेल एंड फीमेल गैमीट है उसके फॉर्मेशन के लिए क्या यूज होगी, मियोसिस होगी. जो मेल गैमीट होगा एन कंडीशन होगी यहाँ पे, क्योंकि 2n कंडीशन ही रहेगी. फीमेल गैमीट बनेगा वो भी एन कंडीशन रहेगी. तो ये एन कंडीशन, ये एन कंडीशन, इसके लिए क्या जरूरी है, मियोसिस. अब जब दोनों फ्यूज हो गए, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हो गया और फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगा. जाइगोट क्या होता है, सिंपल इंक्रीज होता जाता है सेल. तो वो क्या कैसे होगा, सेल डिवाइड होता रहेगा. सेल डिवाइड होना है और प्लॉइडी लेवल भी चेंज नहीं होना है, तो उसके लिए क्या होता है, माइटोसिस. ओके, क्योंकि
एक बार NN फ्यूज होके ये क्या बन गया, 2N बन गया। अब 2N बन गया, अब जाइगोट बनना है, सेल बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा, इस टाइप से पूरी बॉडी बनेगी। तो ये अब यहाँ पे क्या है, इसको फर्दर रिडक्शन डिवीजन नहीं होना है, ये सिंपल इक्विडेशनल डिवीजन होना है या होमोटिपिक डिवीजन होना है। तो ये माइटोसिस होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि नॉर्मल जो ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा कुछ भी बढ़ रहा है, तो वो किससे होता है, ड्यू टू द डिवीजन। और वो कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। In plant, mitosis lead to the formation of new organ like the root, leaves, stems and also the repairing of the damaged part। तो अगर कहीं पे डैमेज भी हो गया है तो वो रिपेयर कैसे होगा, फर्दर बॉडी नई सेल्स को डिवाइड करके, जो सराउंडिंग सेल्स उनको डिवाइड करके नई सेल्स बनाएगी और उससे रिपेयरिंग या उसकी रिकवरी होती है। Then it also help in the asexual propagation of the vegetatively propagated crops like sugarcane, banana, sweet potato, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं होना है, जो भी होगा वो सिमिलर या आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होगा। सो माइटोसिस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोजेनी इन द सच क्रॉप्स। तो ये भी है कि अगर आपको आइडेंटिकल प्रोजेनी बनानी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी भी प्लांट में, तो हम उसके क्या कर सकते हैं, सोमेटिक डिवीजन कर सकते हैं। अगेन हमको चेक करना पड़ेगा कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। माइटोसिस इज यूजफुल इन मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ टाइप्स। तो एक तो ये प्योरिटी ऑफ टाइप्स, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया, इट इज आइडेंटिकल, जैसा पेरेंट है वैसे ही प्रोजेनी आएगी, वो किससे होगा, माइटोसिस से। यहाँ पे क्योंकि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सचेंज नहीं है, because it lead to the production of identical daughter cell and does not allow segregation and recombination to occur, which takes place during the meiosis cycle। तो meiosis में ही होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। In animal it helps in continuous replacement of the old tissue। तो जो old tissues होते ओल्ड टिश्यू जाते हैं उनको कंटिन्यूस रिप्लेस करते हैं बाय द न्यू सेल से। तो वो कैसे होता है, माइटोसिस से की वजह से। अब वो चाहे गट एपिथेलियम में कहीं का भी हो तो वो ऐसे होता है। देन द नेक्स्ट साइकिल इज द meiosis। now अभी हमने माइटोसिस देखा, now we'll study about the meiosis। term meiosis was given by the J.B. Farmer in the 1905। तो meiosis में होता क्या है, the fusion of gamete, जहां पे भी fusion of gamete इन्वॉल्व होगा वहां पे क्या चीज होगी, meiosis। जैसा भी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि zygote formation से पहले मेल एंड gamete फ्यूज हो रहे हैं, तो वहां पे मेल और फीमेल gamete वो किससे बने हैं, meiosis से। From two parent this process is involved there। तो जहां पे भी ऐसा होगा वहां पे ये प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। The term has been derived from the Greek word near, diminish और reduce। तो इसका मतलब ही diminish या फिर reduce करना है। तो अभी जैसे हमने कहा कि पेरेंट कंडीशन 2N की है, तो ये NN के 2 सेल बनते हैं, बेसिकली यहाँ पे 4 सेल बनते हैं। अभी हम देखेंगे ये साइकिल कैसी होती है, बट जस्ट हम समझने के लिए कि 2N से N कंडीशन आती है। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस मियोसिस में होती हैं जो कि माइटोसिस में नहीं होती है। उसमें पहली क्या, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से, जैसे मैंने आपको भी पहले बता रहा था कि जहां पे एक पेरेंट से जो कैरेक्टर आए हैं पहले, जो जिससे फ्यूजन हुआ है, तो फ्यूजन से पहले मैंने आपको बताया कि एक कॉपी कहां से आई है, मेल पेरेंट से, एक कॉपी कहां से आई, फीमेल पेरेंट से। तो दोनों के पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है फॉर अ सेम कैरेक्टर्स। तो जैसे फॉर हाइट कैरेक्टर के लिए ये फीमेल से है, ये मेल से, तो ये दोनों पेयरिंग करेंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ कियास्मा एंड द क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पे क्या होता है, कियास्मा फॉर्मेशन होता है, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ओके। तो यहाँ पे ये एक टाइप से, इसको हम ऐसे बना नहीं पाएंगे, पर आप ये देख सकते हो कि ये एक्सचेंज होता है यहाँ पे, तो ये कियास्मा होता है, हम आगे देखेंगे। देन सेग्रीगेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। देन उसके बाद सेग्रीगेशन हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। बट तो इस पूरे एक्सचेंज में होता क्या है कि ये पार्ट पुराना ही है, यहाँ से ये पार्ट नया आ गया यहाँ पे, और ये पार्ट अगेन पुराना। तो ये बेसिकली एक्सचेंज होता है, इसको हम देखेंगे। एंड दिस अकर्स ड्यूरिंग द meiosis 1 प्रोफेज। सो द फर्स्ट डिवीजन ऑफ meiosis रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो meiosis की साइकिल जो होती है वो 2 उसमें चलती है, M1 कह सकते हैं, M2 कह सकते हैं उसको हम। meiosis 1 एंड meiosis 2 2 साइकिल चलती है। जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मतलब अगर 2N कंडीशन है तो वो N कंडीशन हो जाता है। इट इज कॉल्ड अ रिडक्शनल डिवीजन और हेटेरोटिपिक डिवीजन। हेटेरोटिपिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चेंज हो गया, जो पेरेंटल कंडीशन थी उससे हाफ हो गया। 2 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक सेल। तो 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक साइकिल। तो सेकंड मेयोटिक डिवीजन में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली। अब देखिए हैप्लॉइड सेल कैसे डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली, एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 डॉटर सेल टेट्राड,
with the haploid number of chromosome. The second meiotic division is also known as the homotypic और the equational division. क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ना तो क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ रहा है, ना ही किसी भी चीज में, और क्योंकि ये माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं। जस्ट अभी हमने पढ़ा माइटोसिस में क्या होता है, सिंपल डिवीजन होता है, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज या फिर रिडक्शन नहीं होता है क्रोमोसोम नंबर का। तो जब ये पहली साइकिल में मेयोसिस 1 में ये n से 2n से nn के 2 सेल बने, और इसके अब ये फाइनल डिवीजन होता है, और ये अगेन माइटोटिक है तो इससे 4 सेल बन जाएंगे, और वो चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 4 टेट्रासेल, दैट इज टेट्राड। देन इज द इंटरफेस। ये पूरी जब साइकिल हो जाएगी तो इंटरफेज आएगा। अगेन इंटरफेज जैसे हम कहते हैं कि ये इंटरफेज है, ये मियोसिस है, तो ये मियोसिस 1 साइकिल एंड देन मियोसिस 2 साइकिल। यहाँ पे 2n था सेल, यहाँ पे n हो गया, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, और अब यहाँ से ये जो 4 सेल बने हैं, ये क्या बने हैं, गैमेट बने हैं। गैमेट क्यों यूज होते हैं, होता जब भी कोई भी एनिमल या फिर प्लांट प्रोजेनी फॉर्मेशन के लिए गैमेट बनाता है, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है गैमेट फॉर्मेशन की, एंड बाय द कॉपुलेशन वहां पे ये फ्यूज होता है विद द फीमेल या फिर अल्टरनेट गैमेट, तो वो फिर उसके बाद नई जो प्रोजेनी बनती है उसके लिए यूजफुल होता है। देन फॉर द जाइगोट फॉर्मेशन देन माइटोसिस बनती है। यहाँ पे हम देखेंगे मियोसिस 1 की साइकिल। आई थिंक ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर आपको दिख रही होगी। तो ये अर्ली प्रोफेज 1 है। अर्ली प्रोफेज 1 में क्या होता है, आपको वो बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है, कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग। ओके, कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग आप देखोगे अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, इन दोनों ये जो साइकिल होती है प्रोफेज की, अगेन इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेजेस को भी हम पढ़ेंगे। देन यहाँ ये सबसे मेन साइकिल है कि पहले हम इसको ही पढ़ लेते हैं। जो प्रोफेज 1 होता है तो ये बहुत लॉन्ग होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जितना भी क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, रिकॉम्बिनेशन होने हैं वो इसी स्टेज में होते हैं। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, आपको याद रखना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, तो लेप्टोटीन या लेप्टोनिमा भी उसको बोलते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि जो बीड लाइक स्ट्रिंग्स या फिर जो हमारा सर्कुलर फॉर्म में डीएनए है वो थोड़ा सा कंडेंस होता है as long thread like structure and loosely interwoven. जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, और उसकी क्या होती है, सिनेप्सिस होती है, which form the bivalent takes place. ओके, तो बाइवेलेंट बनते हैं क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, साथ में आ गए हैं। The paired homologous chromosome are joined by the protein called known as the synaptonormal complex. तो ये synaptonormal complex बनता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि प्रोफेज की किस स्टेज में पेयरिंग होती है। पेयरिंग एंड क्रॉसिंग ओवर दोनों में डिफरेंस है। जाइगोटीन कभी भी पूछा जाएगा, जाइगोटीन में आपको ये याद रखना है कि सिनेप्सिस जाइगोटीन में होती है। सिनेप्सिस क्या चीज होती है, ये आपका क्रोमोसोम था, 2 क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ गए हैं, यहाँ पे ये इस टाइप से सिनेप्सिस होती है। ओके, तो दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स तो नहीं, जो अल्टरनेट क्रोमोसोम की जो पास में रहेगी, जहां पे भी एक्सचेंज होना है वो पास में आते हैं, तो इसको हम, ये पेयरिंग होती है। बेसिकली ये सिनेप्सिस बनता है, अभी पेयरिंग हुई नहीं है। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। ये जो अभी खाली कॉम्प्लेक्स बना था या सिनेप्सिस बनी थी, यहाँ पे अब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, ये आपको ध्यान रखना, नॉन सिस्टर। सिस्टर क्रोमेटिड तो ये हो गई इसकी, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, बट इसकी होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा है, जो कैरी कर रहा है सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर या फिर सेम टाइप ऑफ जीन, या फिर हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट एलील उसने कैरी किया हुआ है। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। तो इसको यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। आपको क्या ध्यान रखना है, जाइगोटीन में क्या हुआ है, सिनेप्सिस, पेकाइटिन में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर। देन इज द डिप्लोटीन ऑफ द डिप्लोनिमा। यहाँ पे क्या होता है, फर्दर कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग होगी क्रोमोसोम की, और यहाँ पे चियास्मा फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अब एक्सचेंज हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, एक चियास्मा फॉर्मेशन होता है, और सेपरेशन स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रोमियर एंड ट्रैवल टुवर्ड्स द एंड, और ये धीरे धीरे टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। कोई बहुत लंबी प्रोसेस है, उतना हम नहीं समझेंगे कैसे होता है। देन डाइकाइनेसिस, chromosome continue to undergo further contraction. The bivalent appear as a round darkly stained body and they are evenly distributed throughout the cell. तो अगेन वो पहले ही कंडीशन में आ जाते हैं जैसे पहले थे। तो आपको ये 3 याद रखना है। प्रोफेज 1 की 5 स्टेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसको कई सारे शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको हिंदी में से याद रखना है, लता जरा पानी दे दो, तो इस टाइप से भी याद रखते हैं। वो एक्रोनिम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, 3 स्टेज याद रखनी है। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। वन इज द जाइगोटिन, यहाँ पे क्या हुआ, सिनेप्सिस। क्रॉसिंग ओवर कहाँ से हुई, पेकाइटिन में। डिप्लोटिन में क्या हुआ हमारा,
चियास्मेटा फॉर्मेशन या फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्मा या फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत हो जाइगोटीन में, काइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुई और यहाँ पे खत्म हुई। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुई पूछा जाता है हमेशा, तो आंसर विल बी द पैकाइटिन। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सो अभी हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे ये स्टेज स्टार्ट हुई थी, ये सर्कुलर फॉर्म में था, अब ये पूरे क्रोमोसोम फॉर्म में आ गई क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज हुआ। देन यहाँ पे पहले हमने माइटोसिस में क्या याद किया था? कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग। देन जो दूसरी स्टेज है हमारी मेटाफेज स्टेज में, इसमें क्या होता है? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो जो अलाइनमेंट है क्रोमोसोम का कहाँ होगा? इक्वेटोरियल प्लेट में, और साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर कहाँ पे बाइंड होंगे? सेंट्रोमियर में। देन ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, जो मूवमेंट है सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम डिवाइड होगा और मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, एंड अपोजिट पोल में होने के बाद ये टेलोफेज बनाएगा जिसमें कि ये हाफ हाफ क्रोमोसोम है, तो ये एन एन कंडीशन हो गई। ठीक, तो ये हाफ यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो ये हाफ एन कंडीशन हो जाती है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफेज 1। मेटाफेज 1 मैंने आपको बता दिया मोस्टली कंडेंस दिस स्टेज। कब ये क्वेश्चन भी आता है कि क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस या फिर बहुत अच्छे से किस स्टेज में देखे जा सकते हैं, उनका साइज सबसे ज्यादा बड़ा किस होता है? तो आंसर विल बी द मेटाफेज 1। ओके, तो स्पिंडल फाइबर से होता है तो अरेंज होता है इक्वेटोरियल प्लेट पे या फिर इक्वेटोरियल प्लेन पे, ये अरेंज होते हैं। एनाफेज 1 में जैसा भी हमने डिस्कस किया, क्रोमोसोम इज द बाइवेलेंट मूव टू द अपोजिट पोल विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ईच क्रोमोसोम possess two chromatid in each poles and have a haploid number of chromosome। ठीक है, ये क्रोमोसोम था, ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन से डिवाइड हो गया और ये क्रोमेटिड इधर मूव कर गई, ये क्रोमेटिड इधर मूव कर गई। यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे भी यही कंडीशन है। ये थोड़ा सा हम ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ये बीच से डिवाइड होता है यहाँ पे इस टाइप से क्रोमोसोम, तो ये एन एन कंडीशन हो जाती है। टेलोफेज में क्या होता है कि जो बचा हुआ है उसके अराउंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। अब माइटोसिस में आपको होगा कि इस टाइप का है, तो माइटोसिस में भी लग रहा था। तो माइटोसिस में क्या होता है कि ये जो डिवीजन होता है उसके बाद सीधे इंटरफेस में चले जाता है, वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स को वो फॉर्म कर लेते हैं डीएनए फॉर्मेशन के लिए। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में डिवीजन हुआ है और सिस्टर क्रोमेटिड, और अभी ये केवल फर्स्ट साइकिल है। अब इसके बाद सेकंड मियोसिस स्टार्ट हो जाता है अगेन, जो उसका टेलोफेज के बाद ये प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाता है, प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगेन कंडेंसिंग कॉइलिंग थिकनिंग की होगी, कंडेंसिंग कॉइलिंग थिकनिंग हो रही है, बट ये कैसा है? नंबर अभी हाँ एन हो गया है। पहली में 2n था, अभी उसके टेलोफेज में तक ये n हो गया, अभी यहाँ के प्रोफेज में क्या है? n। तो अब ये माइटोसिस की तरह वर्क करेगा। तो माइटोसिस में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यही यहाँ पे होता है कंडेंसिंग कॉइलिंग थिकनिंग। मेटाफेज 2 में ये स्पिंडल फाइबर अपीयर होंगे, क्रोमोसोम अरेंज होगा कहाँ पे? इक्वेटोरियल प्लेट में। एनाफेज 2 में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, सेपरेशन ऑफ द टू क्रोमेटिड ऑन देयर मूवमेंट टुवर्ड द अपोजिट पोल। टेलोफेज में सिस्टर द क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट पोल्स, द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियस रीअपीयर। और ये जो एन एन कंडीशन थी, अभी ये 1 से 2 बने थे, अब यहाँ पे क्या बन जाएंगे? 2 से 4 बन जाएंगे। तो ये बेसिकली कैसी कंडीशन हो जाती है? टेट्राड कंडीशन हो जाती है। और ये भी कंप्लीट न्यूक्लियस के अंदर ही है 4। अब ये जब इंटरफेज में जाएंगे तो डिफरेंट सेल बन जाएंगे। तो ये दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द meiosis। Significance of meiosis क्या है? It is help in maintaining a definite and the constant number of the chromosome in the species। तो ये कांस्टेंट नंबर बनाता है। होता क्या है कि 2n है, मान लीजिए जब हम कहते हैं कि गैमीट में क्यों क्या जरूरत है, पूरा 2n ही आ जाए, यहाँ पे n बनता है सिमिलरली अदर पेरेंट्स से, तो दोनों पेरेंट्स से फ्यूज होकर क्या बन जाता है? 2n बन जाता है। आप सोचिए कि ये डिवीजन हो रहा है, 2n 2n रहे, यहाँ पे भी 2n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4n। अब 4n 4n, तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा प्लॉटी लेवल। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा और ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि n का मतलब है कि उतना ही न्यूक्लिक मटेरियल डिवाइड या फिर उतनी ही पार्ट में अवेलेबल है। 2n हम कह रहे हैं तो 2 पार्ट्स में या 2 कॉपीज में। इट हेल्प इन मेंटेनिंग अ डेफिनिट एंड कांस्टेंट नंबर। meiosis result in production of gamete with haploid chromosome। तो ये तो बेसिक आउटकम है ही। meiosis facilitate segregation and independent assortment of the chromosome and genes। तो जितने भी मेंडल्स के लॉ हैं वो यहीं पे वर्क करते हैं। It provides an opportunity for the exchange of genes throughout the process of the crossing over। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्योंकि meiosis में हो रही तो सारी चीजें यहीं पे होती हैं। Recombination of genes result in the generation of variability। Okay, so this is important
in a biological population which is important for the evolution point of view. तो वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएबिलिटी नहीं होगी, जैसा पेरेंट है वैसे ही ऑफस्प्रिंग होगा। तो अगर मान लीजिए कोई चीज ससेप्टेबल है पेरेंट के लिए, तो वो ऑफस्प्रिंग के लिए भी हो जाएगी। तो वेरिएबिलिटी आती है, तो वेरिएबिलिटी से नई चीजें भी आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन वो आगे मूव करती हैं। तो मियोसिस की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, चाहे हम ह्यूमन डेवलपमेंट करें, प्लांट डेवलपमेंट करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ब्रीफ अबाउट द माइटोसिस, मियोसिस एंड द क्रोमोसोम। होप यू विल नो अबाउट the complete thing which we have studied today. So अगर आपका